আমাদের ধর্ণা তো চলছে আজকে 60 দিন হতে চলেছে। অভয়া ন্যায় বিচারের যতদিন লড়াই ততদিনই ধর্ণা চলছে। কিন্তু এখানে ধর্মতলার এই ডরিনা ক্রসিং এর যে ধর্ণা, এটা কাল সন্ধ্যে থেকে বসেছে এবং এটা এখন চলবে। আমরা সন্ধ্যে থেকে বসার পরে আমাদের প্রেস রিলিজে জানিয়েছি যে আমাদের দাবিগুলো 24 ঘন্টার মধ্যে ভেবে দেখার জন্যে। 24 ঘন্টার মধ্যে না ভেবে দেখলে আমরা আমরণ অনশনের দিকে এগোবো। সেটার জন্য এখানে একটি ঘড়ি লাগানো রয়েছে এবং সেই ঘড়িতেই টাইম কাউন্ট হচ্ছে। সেই টাইমটা আজকে রাত্রির 8টা বা 9টার থেকে। আমরা কর্মবিরতি সম্পূর্ণরূপে তুলে নিয়েছি। আমরা পুরোপুরিভাবে এমার্জেন্সি শুধু নয়, এসেন্সিয়াল শুধু নয়, নন এসেন্সিয়াল সার্ভিসেসও যা আছে, ওপিডি থেকে শুরু করে কোল্ড ওটি সব কিছুতেই আমরা ফুল ফেজে জয়েন করে গেছি। আমরা কাজ তো অবশ্যই করব এবং কাজ করতে করতেই আন্দোলন চলবে। আমাদের সিনিয়র ডাক্তাররা, সিনিয়র স্যাররা আমাদের পাশে রয়েছেন। সবাই মিলিয়েই আগামী অনশন এবং কাজ একসাথেই চলবে। 24 ঘন্টা পরেও যদি আমরা ধর্নায় বসে থাকি, যখন আমরা স্বাস্থ্য ভবনে গিয়েছিলাম তখন আমাদের কমপ্লিট সিজ ওয়ার্ক চলছিল, তো সেই জায়গায় আমরা সবাই গিয়েছিলাম। এখানে যেহেতু কর্মবিরতি আমরা তুলে নিয়েছি, সব সময় প্রতিটা হাসপাতালে সিনিয়র ডাক্তাররা তো আগেও ছিলেন, হাসপাতাল কোথাও বন্ধ ছিল না। আপনারা একটা জায়গাতেও দেখাতে পারবেন না যে হাসপাতাল বন্ধ ছিল। এবং এখন সেখানে সিনিয়র জুনিয়র সমস্ত ডাক্তাররাই থাকবে। যার যখন যেমন ডিউটি রয়েছে তারা তখন সেরকম ভাবেই ডিউটি থাকবে। যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে বা সে ডিউটিতে যেতে না পারে, তাহলে আগে যেটা আমাদের সিস্টেম ছিল, আমাদের তো জুনিয়র ডাক্তারদের ছুটি বলে কিছু নেই। আমাদের ছুটি বলে সত্যিই কিছু নেই। যদি আমাদের বাড়িতে খুব বিপদ হয় বা আমাদেরও খুব বিপদ হয়, তাহলেও আমাদের একটা রিপ্লেসমেন্ট দিয়ে যেতে হয়। আর কোনো একটা বন্ধুকে যে ভাই তুই আমার ডিউটিটা করে দে, এইরকম বলে যেতে হয়। তো আমাদের এই অসহায় অবস্থা, তো আমরা সেই অসহায় অবস্থাতেই অনশন করব। আমরা যখন সে ধর্নায় থাকবো, যে থাকবে তার এগেনস্টে অন্য কেউ রিপ্লেসমেন্ট করবে। কিন্তু যেখানে যটা জুনিয়র ডাক্তার দরকার, যেখানে যটা জুনিয়র ডাক্তার থাকার কথা, ততটাই থাকবে। রাত 8:30 থেকে টাইম শুরু হয়েছে। এই ঘড়ি হাতে নিয়েই প্রেস কনফারেন্স হয়েছিল। সেখান থেকে যতক্ষণ এই ঘড়িটাই আমরা দেখছি, সবাই দেখছে, গোটা রাজ্য দেশ দেখছে, 8:30 থেকেই আমরা অনশন শুরু করব। মিতালি চক্রবর্তী, আমি সেই ভিআইপি রোড থেকে আসছি, এয়ারপোর্টের কাছে। এই ডক্টরদের সঙ্গে ওদের মুভমেন্টে সলিডারিটি দেখানোর জন্য, আর ওদের সঙ্গে যেরকম ব্যবহার করা হয়েছে, পুলিশ টেনে হেঁচড়ে করেছে, এগুলো তো ঠিক নয়। এই ছাড়া ওদের কাছে আর অপশন নেই, ওরা সেটাই বলছে বারবার, ওদের আর অপশন নেই। আমরা দেখুন, আমাদেরও অফিস আছে, সবই আছে, কিন্তু তারপরেও আমরা অফিসের পরেও স্বাস্থ্য ভবনে গেছিলাম, আজকে ছুটির দিনে আসছি, কাজে আমরা থাকবো ওদের পাশে, ডেফিনেটলি থাকবো। আমি মেডিকেল কলেজ কলকাতা। আমাদের প্রথম যে 10টা দাবি ছিল, আমাদের 10টা দাবির প্রথম ছিল হচ্ছে অভয়ার ন্যায় বিচার, এবং তারপরে ছিল স্বাস্থ্যক্ষেত্র ছাড়া বাকি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে ভয়ের রাজনীতি বা থ্রেট কালচার প্রিভেলেন্ট, সেটা এন্ড করা, এবং সেখানে যারা যারা জড়িত তাদেরকে প্রপারভাবে সাসপেন্ড করা, সাসপেনশন লেটারের মধ্যে প্রপার কারণ দর্শী তাদেরকে সাসপেন্ড করা, এবং আমাদের সবার সুরক্ষা, দ্যাট ওয়াজ এ মেজর ফ্যাক্টর, যেখানে সিসিটিভি ফুটেজ, মানে সিসিটিভি ক্যামেরার ইনস্টলমেন্ট, প্যানিক বাটন, আরেকটা ছিল সেন্ট্রাল রেফারেল সিস্টেম, মানে বিভিন্ন হসপিটালে কতগুলো বেডস ভ্যাকেন্ট আছে, এইগুলো যাতে পুরো সেন্ট্রালি কন্ট্রোল হয়, কিনা মানুষের পেশেন্টের যাতে হয়রানি না হয়, রোগীকে যাতে হয়রানির শিকার না হতে হয় সেই পার্টিকুলার টাইমে। আরেকটা হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন রেসিডেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনগুলো আছে, সেগুলোকে মান্যতা দেওয়া। এ কটা দাবি নিয়েই কিন্তু আমাদের রাস্তায় নামা এবং রাজপথ দখল করা বারংবার। এবং এই ক্ষেত্রেও আমরা বলেছি যে আমাদের 24 ঘন্টার মধ্যে আমরা টাইম দিয়েছিলাম টোটাল, যেটা আজকে রাত্রি 8:30টায় শেষ হচ্ছে। সেই 8:30 অব্দি আমরা টাইম দিয়েছি। সরকার যদি আমাদের যে ডিমান্ডসগুলো আছে যেগুলো ফুলফিল করার জন্য যদি কোনো সদিচ্ছা দেখায় তাহলে ভালো কথা, আদারওয়াইজ আমরা আরো তীব্রতর আন্দোলনে যাব এবং আমরণ অনশনের জন্য আমরা প্ল্যান করছি। অভয়ার প্রতিক্রিয়াটা, যে যেভাবে তাকে তার ওয়ার্ক প্লেসে আরজিকর হাসপাতালে, যেভাবে তার সেকেন্ড হোমে এভাবে একটা হিনিয়াস ক্রাইম, গণধর্ষণ এবং খুনের শিকার যেভাবে তাকে হতে হয়েছে এবং যেভাবে তার প্রাণ চলে গেছে, তারই একটা অবয়ব হিসেবে আমরা এই মূর্তি স্থাপন করেছি। এবং সেই মূর্তি মানে অভয়ার জন্যই এই জাতির জেগে ওঠা, এই বাঙালির এরকম বুক চিতিয়ে প্রতিবাদ করা, এবং যার জন্যই তাকে ঘিরেই সবকিছু, তাই তার মূর্তির প্রতীকী আমরা এখানে রেখেছি, এবং তাকে ঘিরেই আমাদের এই আন্দোলন, এবং তাকে বিচার পাওয়াতেই আমাদের আজ রাজপথ দখল করা। তাই তখন আমরা তীব্রতর আন্দোলনে যাব এবং আমরা আমরণ অনশনের জন্য প্ল্যান করছি। আমরা সময় দিয়েছি 8:30 অবধি, সেই জন্য ঘড়িতে কতটা টাইম টিক 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 করে বেরিয়ে যাচ্ছে, সেটাই সরকারকে সচেতন করা, শাসক দলকে সচেতন করা, যে টাইম বেরিয়ে যাচ্ছে। যেহেতু 8:30 অবধি সময় দেওয়া আছে, যদি সরকার কোনো সদিচ্ছা দেখায় আমাদের ডিমান্ডস ফুলফিলমেন্টের দিকে, তাহলে ভালো কথা, আদারওয়াইজ আমাদের তীব্রতর আন্দোলনের দিকে যেতে হবে। এখনো অবধি আমাদের কাছে কোনো মানে আমাদের দাবি রিলেটেড কোনো সদিচ্ছাপূর্ণ কোনো মেসেজ আসেনি।
হ্যাঁ, সেটা কালকে হয়েছিল। কালকে একটা অপ্রীতিকর সিচুয়েশন ক্রিয়েটেড হয়েছিল, যেখানে দুজন জুনিয়র ডাক্তারের উপরে হামলা করা হয় এবং তাদেরকে টেনে হিচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়, তাদেরকে অবস্থান মঞ্চ বানাতে দিতে মানে বাধা দেওয়া হয়। এবং পরবর্তীকালে রাত্রিবেলাও দেখা যায় যে ডেকোরেটার্সদের দিয়ে ঝামেলা হয়, যে ডেকোরেটার্সদের দিয়ে প্যান্ডেল বাঁধতে দেওয়া হচ্ছিল না। কিন্তু এখন সবকিছুর পর ডাক্তাররা নিজেরাই প্যান্ডেল বেঁধেছে এবং এখন আমরা এখানে অবস্থান করছি। मेरा नाम डॉक्टर उर्मी माला है। मैं मेडिकल कॉलेज से हूँ। 2 बैठक ऐसे हुई थी। पहला बैठक में हम लोग को सिग्नेचर मिला उनका, दूसरे बैठक में नहीं मिला। उसके बावजूद हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि और भी ऐसे बैठा जाएगा और भी सुलह की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद हम लोग देखे, जब भी जिस पॉइंट पे हम लोग सीज वर्क उठा दिए, काम पे हम लोग चालू हो गए फिर से, उस पॉइंट से हम लोग मेल पे मेल भेजते रहे, उसका कोई रिप्लाई हम लोगों को नहीं मिला। ऊपर से एक एक कॉलेज में जब हम लोग पार्शियली जब ज्वाइन किए, उसके बाद से देखा गया है कि जो भी सिक्योरिटी मेजर्स जो वो लोग माने थे कि वो लेंगे, ठीक है, वो भी मेजर्स नहीं लिए गए। जो सिक्योरिटी वर्कर को ऐसे टी शर्ट पहना के खड़ा किया गया, वो लोग भी दे वर नॉट इफेक्टिव। वो लोग इफेक्टिवली कुछ नहीं कर पाए। जब भी कोई प्रॉब्लम हम लोग फेस किए, दे हैड बीन स्टैंडिंग, वो लोग खड़ा होके बाजू में देख रहे थे। वो चीज नोटिस करते हम लोग को फिर से समझ आया कि इफेक्टिवली कुछ हुआ ही नहीं है। और बाकी हम लोग जो बाकी फर्दर क्या प्रोग्रेस हुआ है, क्या आगे बढ़ने वाला है, हम लोग का मेंबर कोई होगा उसमें कि नहीं, उस बारे में जो भी बातचीत के लिए हम लोग मेल भेजे, उसका रिप्लाई नहीं आया हम लोग के पास। धर्मतल्ला में फिर आके मेन सेंटर में आकर आप लोगों को धरना देना बताते हैं, हम लोग को सुप्रीम कोर्ट में लास्ट जो हियरिंग हुआ, वहाँ पे स्टेट से बताया गया कि वो पेशेंट जिस कारण से पेशेंट की जान नहीं बचाई गई, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर्स को है। क्यों? क्योंकि पेशेंट को आईसीयू बेड नहीं मिला था। उसका कारण क्या है? डॉक्टर्स ने आईसीयू बेड नहीं दिया था। हमको जानना है कि डॉक्टर्स के पास आईसीयू बेड कब से रहने लगा, या एडमिनिस्ट्रेशन के पास रहता है, डॉक्टर्स के पास नहीं रहता है बेड कौन देगा, कितना बेड रहेगा, बेड में कौन बैठेगा नहीं बैठेगा, ये डॉक्टर्स का है ही नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेड खाली है, जो पेशेंट नेक्स्ट लाइन में है उसको दो। तो बेड नहीं मिलने का कारण कि कभी भी डॉक्टर के ऊपर नहीं लाया जा सकता है। जिसलिए हम लोग का जो भी, आप अगर देखोगे, हम लोग यहाँ पे जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग का कुछ तो डिमांड्स है, जिसमें आप देखोगे कि वी आर फोकसिंग ऑन सर्टेन रेफरल सिस्टम्स, प्रॉपर रेफरल सिस्टम जो कि स्टेट में होना चाहिए। क्योंकि जो पेशेंट्स है उनको इतना दिक्कत होता है, क्योंकि एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज ये लोग धक्का खाते रहते हैं। जिस टाइम पे वो लोग अल्टीमेटली आके टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर पे पहुंचते हैं, जब उनका इलाज एक्चुअली जहाँ पे हो सकता है, वहाँ पे आते आते इतना टाइम बीत जाता है कि पेशेंट ऑलरेडी, उसका हालत इतना खराब हो जाता है। क्योंकि हर ट्रीटमेंट में कुछ गोल्डन आवर होता है, कुछ बेसिक मिनिमम टाइम होता है, जिस टाइम में अगर ट्रीटमेंट हो पाए, और ये तभी पॉसिबल होगा अगर एक कौन सा चीज कौन सा कॉलेज में होगा वो प्रॉपरली बता के भेजा जाए। ना ही कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है, ना ही आपको बेड क्यों नहीं मिल रहा है आपको समझ नहीं आएगा। बेड क्या किसी के लिए रिजर्व है, ये भी आपको समझ नहीं आएगा। तो ये ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है पेशेंट के लिए। तो हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे हम लोग पेशेंट का हमको समझ आ रहा है, हम लोग इतने दिन से हम लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स को मालूम है पेशेंट को किस चीज से दिक्कत हो रहा है। तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि स्टेट को कुछ एक्टिविटी तो करना चाहिए कि वो पेशेंट का भी ये जो दुख दर्द है वो उसको हटाने का कोशिश करे, और यही हम लोग का डिमांड है। तो इस जगह पे ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है कि पेशेंट्स अलग अलग साइड में है और हम लोग अलग साइड में है, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ऐसा अगर स्टेट सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलने का हिम्मत रख रही है तो हम लोग को ये एकदम ही क्लियर करना है। और हम लोग इसी कारण से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वी आर नॉट द एनिमी ऑफ द कॉमन पीपल। हम लोग का काम, पूरा जिंदगी हम लोग का इसी पे बीत रहा है। हम लोग का ये माने दिस इज आवर रिलीजन। हम लोग का भक्ति यही है कि हम लोग को ट्रीट करना है पेशेंट्स को। हम लोग पूरा दिन सुबह उठ के ऐसा नहीं सोचते कि पेशेंट कौन मरे, ऐसा बिल्कुल ही नहीं सोचते। उठ के हम लोग का मतलब पूरा भक्ति से हम लोग यही काम करते हैं। तो हम लोग को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता किसी पेशेंट के साथ कुछ भी जो बुरा हो, या फिर उनको जो भी दिक्कतें हो रही है, वो हम लोग को मजा नहीं आता इस चीज से। बिल्कुल हमको यही क्लियरली बोलना है कि आपको जो हम लोग डिमांड रखे हैं हम स्टेट के सामने, दीज आर वेरी इजी थिंग्स टू मैंने दे देने के लिए, बहुत आसान चीजें हैं। आप मीटिंग बिठाओ, 2 घंटे का मीटिंग में आपको आ जाएगा, आपको साइन करके आप दे दो कि हाँ क्या ही है इसमें मांग, क्या ही बुरा मांग है। हाँ आराम से आप ले सकते हो, ये आप डिसीजन आप दे दो, इसमें क्या आपको दिक्कत हो रहा है। पेशेंट का कुछ भला हो जाएगा तो आपको दिक्कत क्या होगा। हम लोग तो वही मांग रहे, 1-2 डिमांड तो हमारी वही है कि पेशेंट का भला हो उसमें कुछ, क्योंकि पेशेंट का भला होगा तभी पेशेंट समझेगा डॉक्टर को क्या दिक्कत हो रही है। जैसा कि दिक्कत आ रहा है कि कुछ भी होता है डॉक्टर पे हमला किया जा रहा है, आज नहीं कोरोना दिनों से, तो आप लोग चाहते हैं तो मॉनिटरिंग सिस्टम हो जिससे कि डॉक्टर को पता लगे। देखिए हम तो ऐसा कुछ इलाज आपको दे नहीं सकते कि ये कर दो
तो पेशेंट का कभी हम लोगों पे गुस्सा नहीं होगा, क्योंकि सब जो पेशेंट है और उनके घर वाले हैं सब ऐसे ही समय से कभी किसी का अगर सच में कुछ ग्रेव आउट मैंने कुछ मैंने प्रोग्नोसिस खराब है या फिर कुछ बीमारी बहुत संगीन बीमारी है, तो उनका जो मेंटल कंडीशन होता है हम लोग उससे वाकिफ है। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं समझ पा रहे कि ये लोग क्यों गुस्सा हो रहे हैं, हम लोग को तो समझ आता है, हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं, इसका भी ट्रेनिंग हम लोग को मिलता है कि हम लोग काउंसलिंग करें। तो हम लोग आपको इलाज एक दो बोल रहे कि ये आप करो, शायद से उनका थोड़ा बेटरमेंट हो, शायद से उनका दिक्कत थोड़ा कम हो, यही बोला जा रहा है। अच्छा, आप लोग अभी धरना मंच यहाँ पे धर्मतल्ला में की है, मेन जगह पे। एक समय था यहाँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी नैनो कार आने से पहले इसी जगह पे धरना दिया था, इसी कार में। तो आप लोग का धरना क्या ऐसा ही कुछ चैलेंजिंग है उनके लिए? वो तो बिल्कुल ही है, चैलेंजिंग का बात नहीं है। हम लोग को अपना प्रोटेस्ट करना है, जितना दूर तक हम लोग कर पाएंगे हम लोग करेंगे। हम लोग भी बहुत मुश्किलों से जूझ के कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटना चाहते हैं। जो हम लोग के साथ बहुत लोग हमारे पास आके खड़े हुए हैं, वो लोग भी बहुत दिक्कतों से जूझ कर आके खड़े हुए हैं। तो ऐसे हम लोग आज कैसे भी मुंह मोड़ के पीछे नहीं हट सकते। हम लोग कुछ अगर प्रॉमिस किए थे इन लोगों से, और हम लोग अपने आप से भी प्रॉमिस करके आगे बढ़े हैं, सब लोग लड़ के आगे बढ़े हैं। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि बहुत आसानी से कोई एकदम ठीक है कर लिए, कुछ तो दिक्कत ही नहीं। सबको अपने डिपार्टमेंट में, अपने कॉलेज में, अपने सबके साथ लड़के ये करना पड़ रहा है। ये बहुत आसानी से नहीं मिला है हम लोगों को, तो हम लोग इसको पीछे नहीं छोड़ेंगे। किसी को चैलेंज करने का बात नहीं है। जो हम लोग मानते हैं कि हम लोग जो मांग वो भी जानती है कि ये सही मांग है, और उनको भी अपने पेशेंट्स का चिंता है। 24 घंटे आप लोगों का टाइम दिया है हाँ सरकार हाँ। 24 घंटे बाद क्या? 24 घंटे बाद हम लोग भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं। भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं क्योंकि ये हम लोग का प्रोटेस्ट है। दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। वी हैव ट्राइड, वी हैव नॉक्ड एवरी डोर। जहां जहां जो कर सकते थे, वी हैव नॉक्ड एवरी डोर, वी हैव रिक्वेस्टेड, we sat with the honorable chief minister in a meeting. After that we have nothing else left. हम लोग के पास और कुछ बचा नहीं है। हम लोग को सच में ही लगता है कि ये प्रोटेस्ट करने लायक चीज है। अगर आप आज बोल रहे हो सुप्रीम कोर्ट में कि डॉक्टर्स के वजह से पेशेंट का डेथ हो रहा है, सिर्फ डॉक्टर के वजह से, ये तो बहुत ही गलत बात है। क्योंकि डॉक्टर्स हमेशा ही चाहते हैं कि पेशेंट्स का भला ही हो। कुछ कंडीशन ऐसे रहता है जिसमें कुछ कर पाना मुश्किल हो जाता है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा रहता है। क्योंकि कोई डॉक्टर क्यों चाहेगा पेशेंट का खराब करके, उसको क्या फायदा होना है, ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है। हम लोग को समझ नहीं आता है। पेशेंट के रिलेटिव्स को कभी ऐसा लग सकता है कि वो लोग खुद बहुत खराब टाइम से जा रहे होते हैं, तब उनको लग सकता है कि बुरा लग सकता है। देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। वो हम लोग को पता है। हम लोग वो समझ के ही हम लोग उनके साथ डील करते हैं। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि हम लोग को वो चीज नहीं समझ आती है। लेकिन कुछ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में बेटर करने से पेशेंट को भलाई हो रही है तो उसमें क्या दिक्कत है। पेशेंट के रिलेटिव्स के लिए इतना ही मैसेज है कि ये लोग हम लोग को गलत ना समझे। हम लोग भी जानते हैं कि ये लोग हम लोग को गलत नहीं समझते। मैंने बहुत पेशेंट के रिलेटिव्स है जो कि अच्छे से समझ पाते हैं हम लोग किस जगह से काम कर रहे हैं, क्या मेंटालिटी से काम कर रहे हैं, इन लोग को पता है। और ये लोग ठीक है, ये लोग गुस्सा भी करेंगे तो हम लोग उनको संभालने के लिए हम ही लोग हैं। उनको भी ये समझना चाहिए कि उनको जब मैंने कुछ भी दिक्कत है उनको आनी, कोई तो शौक से हॉस्पिटल नहीं आता है, सब मजबूरी में आते हैं। तो उस हिसाब से अगर कोई आ रहा है हॉस्पिटल तो हम लोग को पता है वो लोग किस दिक्कत से आ रहे हैं, और हम लोग समझना चाहते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। वो लोग भी यही चीज समझे, और हम लोग काफी चीजें उनके भलाई के लिए भी बोल रहे हैं। उनका कभी बुरा हो हम लोग को नहीं, ऐसा मंजूर नहीं है। अच्छा, डॉक्टरों और मरीजों के स्वार्थ के लिए राज्य सरकार से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोग? हम कहना चाहेंगे कि जो भी हम लोग कुछ चीजें हम लोग आपको बोले हैं, शायद से आप लोग को इससे भी अच्छा कुछ आपको पता होगा, वो भी आप लोग बताइए। और हम लोग जो थोड़ा सा भी कुछ सोच के निकाले हैं वो भी आप लोग सोचिए, और हमको या तो बताइए कि इसमें क्या गलत है। सही हम लोग सुनने को तैयार है, और अगर गलत नहीं है तो कर दीजिए। इतना भी दिक्कत नहीं होने वाला है, आप कर दीजिए, इतना ही आसान है। हमको भी मालूम है, आपका भी मन पेशेंट के भलाई के लिए ही आपको करना है, हमको भी वही करना है। दोनों का एक ही तरफ रास्ता है, तो दिक्कत क्या ही है। আমরা স্টেটের উপর ভরসা রেখে আংশিকভাবে আবার কাজ শুরু করেছিলাম। স্টেটের সদিচ্ছার উপর ভরসা রেখেছিলাম, কিন্তু স্টেট আমাদের সেই ভরসার দাব দিতে পারেনি।
স্টেটকে আমরা কন্টিনিউয়াসলি 2-3 বার মেল পাঠিয়েছি, লাস্টেও অনেকবার রিকোয়েস্ট করা হয়েছিল মেল পাঠিয়ে, কিন্তু সেগুলোর কোনো রিপ্লাই আসেনি। কারণ এটা হচ্ছে তাদের আমাদের বিচার দেওয়ার প্রতি সদিচ্ছার অভাব। তার জন্য আমরা বুঝতে পেরেছি স্টেট কোনোদিনও আমাদেরকে সুবিচার দেবে না। তার জন্য স্টেটের উপর প্রেশারাইজ করবার জন্য আমরা আবার এখানে অবস্থান মঞ্চে আসতে বাধ্য হয়েছি, এবং তার সাথে চিকিৎসা পরিষেবা যাতে সুষ্ঠুভাবে চলে তার জন্য আমরা আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ রকমভাবে চালুও করে দিয়েছি। কিন্তু আমাদের নিজেদের ক্ষতি করে হলেও আমরা আমাদের বিচার ছিনিয়ে নেব, এটা আমরা আপনাদেরকে বোঝাতে চাইছি। আমরা তার জন্য আমরণ অনশনে যাচ্ছি, যাতে আমাদের সুবিচার আমরা ছিনিয়ে নিতে পারি। আমার নাম সৌপর্ণা দে, আমি যাদবপুর থেকে আসছি। WPG ডে, ডক্টরদের সলিডারিটিতে এসছি, এবং সব থেকে বড় কথা আমি আমার নিজের অধিকারের জন্য এসছি, নিজেরও ন্যায় বিচারের জন্য এসছি। প্রথমত ডাক্তাররা হঠাৎ করে রাস্তায় নামেনি, ডাক্তাররা কালকে সুস্থভাবে এসছে, তারপর পুলিশ তাদের গায়ে হাত তোলে, ডাক্তারদের গায়ে হাত তোলে, ডাক্তারদের থ্রেট দেওয়া হয় যে পুলিশ ভ্যানে করে নিয়ে যাওয়া হবে। তারপর ডাক্তাররা সিদ্ধান্ত নেন যে এই ন্যক্কারজনক ঘটনার তীব্র বিরোধিতা করে ওরা এখানে অবস্থানে বসবে, এবং অবশ্যই ডাক্তারদের সলিডারিটিতে আসছে। এই ঘটনার তীব্র ধিক্কার জানিয়ে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি। উৎসবের মৌসুম, মুখ্যমন্ত্রী বলছে উৎসবে ফিরুন, এটা কি উৎসবে ফিরা এক ধরনের? এই আমাদের বিপ্লবী আমাদের উৎসব, আমরা তো আগেই অ্যানাউন্স করে দিয়েছি।